morning, students. I, Ashraf Nadaf, welcome you all in our today's session. This online session through Zoom meeting, which is being published on and telecasted on YouTube. It is done by BMC Education Department. Today, in our English subject, we are going to see a poem called How Creatures Move. So, all the students are requested to open the textbook. It's on page number 47, and then we shall see the poem. Okay, students, before moving to the topic, I would like to tell you something. This is our English subject, and what we do is why we are learning this poem because we want to learn a language, English. Okay, so the poem, the chapter, the essay, the grammar, the different things just make us learn English. Okay, it is a tool. So, what we can do if we intend to learn English, there are some basic things. So, before I start the poem, I would like to share those things with you. Okay, like this poem will tell us about the movement of creatures. I'll be explaining the meaning, word meanings, the pronunciation, everything to you. But with that, I will tell you how to learn English. So before we move to the topic, the things which are very important are first, the confidence. You should have the confidence that I can learn English. I have come across many students who say that I don't know English, who say that I cannot learn English. So this is the negative aspect. You should never think like that. आप लोगों को सोचना है कि आपको इंग्लिश आती है, जितनी भी आपको इंग्लिश आए, और आपको और इंग्लिश सीखनी है. एंड nobody is perfect. Okay, we keep on learning. हम हमेशा सीखते रहते हैं. इसलिए आपको ये जरूरी है कि आप ये धारणा मन में बना के रखें कि मुझे इंग्लिश आती है और आएगी, चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो. कोई भी वर्ड आपको समझता ना हो, कोई भी वर्ड की मीनिंग आपको पता ना हो या बोलना ना आता हो, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है. आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें लेनी है. जैसे हमारी कहावत एक हिंदी में होती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसी तरीके से वर्ड बाय वर्ड वी लर्न द language. And here when we are supposed to learn English language, so every word is important. I believe every word is important. You should try to learn every word. And you cannot learn everything together. एक ही बार में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है. इसलिए जितना आपको याद रहता है उतना आपको याद रखना है, लिख के लेना है और रिवाइज करते रहना है. और एक मैंने बात कही कॉन्फिडेंस की, आपको इंग्लिश आता है और आप और अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं. ठीक है. I shall be showing you a PPT. एक PowerPoint presentation आपके सामने यहाँ पर बताया जाएगा. Through that we shall learn the poem. First I shall be reading the poem and then the explanation part will take place. And one important thing, as you all know, you are attending these sessions online on YouTube. I would like to repeat those things that many other topics are available on YouTube. आपकी पाठ्य पुस्तक के लगभग सभी पाठ इसके पहले के आपको YouTube पर मिल जाएंगे. आपको उसको सर्च करना आना चाहिए. और इंग्लिश भाषा सीखने के लिए आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हम सुनकर और एक्सप्लोर करके सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, तो एक सीखने का तरीका ये भी होगा कि इस पोएम में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा. हर एक वर्ड की मीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो उसे कैसे ढूंढना है, कैसे सीखना है, उसका तरीका आपको बताऊंगा. और उस तरीके से आप उस शब्द की मीनिंग ढूंढ सकते हो, पोएम सीख सकते हो. और सिर्फ पोएम की बात नहीं, इंग्लिश में बाकी कोई भी चीज हो आप उसको ढूंढ के सीख सकते हैं और आप इंग्लिश सीख सकते हैं. I will not go very fast because I know there are many kind of students. मैं ज्यादा धीमे भी नहीं चलूंगा, मैं ज्यादा फास्ट भी नहीं बोलूंगा. अगर आपको लगता है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि अगर सर फास्ट जा रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है. मैं जहां जहां पे लगता हूं, आई विल रिपीट. I'll not say everything in English. I understand many of you are not comfortable much to understand each and every word. That's why I will repeat many sentences in Hindi as well. So let's start with the topic. Here it is. Today we are going to learn subject English, topic how creatures move. I am Ashraf Nadaf. Okay, students, you can see a picture
on your mobile screen or any other device. If you are attending through a laptop or computer, what the question says, identify which animal is this. So you can answer me through chat boxes. आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चैट बॉक्सेस को यूज करना जानते हैं, तो इसका जो जवाब है आप मुझे चैट के थ्रू बता सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, ओके, साक्षी शर्मा इज द फर्स्ट गर्ल टू आंसर. शी हैज आंसर्ड मी एलिफेंट. ग्रेट साक्षी, वेरी नाइस, वेरी क्विक. See, this is the confidence and the way you answered. It's technology and your knowledge as well. Good. I will move forward. This is an elephant, correct answer. Now next is this one. Okay, identify which animal is this. Next. Now I would like to have your answers from the other students. Come on children. It's very easy. You can answer. Yes, again, I got the answer from the same girl. Sakshi from Unnatagasi. Other students, I want answers from you. She has answered me. I would like other students to join. Yes, Sakshi, again, it is correct answer. You have answered horse. Very nice. Next one, you will see one more. Yes. Identify which animal is this. One more animal. Come on, fast. I will help you out. This animal lives in jungle, or you can say forest. Now Ashira, very nice. She has answered tiger. Correct answer. Yes, it is a tiger. Other students can also answer me through the chat. I can see your chat. I can see your message. Now Ranjit has also answered correctly. Yes, it is a tiger. Students, you have seen many animals here on the screen. Now read this out. See, when you see something, when you intend to learn English, the environment of English should be there. What do I mean by the environment? Like, you should keep on reading what you get to see. You should keep on thinking the name of things which you see around. जो आपको आपके चारों तरफ दिखता है, आपको उसको इंग्लिश में उसका नाम क्या है सोचना है. इससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा और यही आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा. अब आपके सामने स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है. I will read out this sentence, this question for you. Do you want to see more animals? And answer is there in option form, yes or no. So tell me, do you want to see more animals? क्या आपको और भी animals के pictures अभी देखने हैं? आप chat में मुझे बता सकते हैं. बहुत सारे बच्चों ने कहा, कुछ का जवाब yes, कुछ का no, ये हो सकता है. तो I want to see your answers. I want to see your response. Yes. Now Nidhi has said yes. Yes, Nidhi, this is for you definitely. See, others are also answering. Very nice. See, this is one for you. Okay, students, can you guess which animal is this? Again, don't worry, I'm not teasing you, but this is very funny animal. I feel you will also like it. Yes, Sakshi, it is monkey. Very nice. It is teasing us. See, अब आप लोगों को पिक्चर देख के बहुत अच्छा लगा, कितना मजेदार पिक्चर है. एक बंदर जो है वो हमें चिढ़ा रहा है. मंकी तो सबको पता चल गया कि भाई मंकी है, बंदर है, लेकिन वो जीभ निकाल के हमें चिढ़ा रहा है. तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम तो बैठे हैं पोएम सीखने के लिए. तो बच्चों से पोएम सीखना इंग्लिश नहीं होता है. इंग्लिश इज टू थिंक इन इंग्लिश, एंड फॉर थिंकिंग इन इंग्लिश यू मस्ट हैव द वोकैबुलरी. हर शब्द का जब तक आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नहीं पता होगा, उसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता होगा, तो इंग्लिश नहीं आती है. सो कीप ऑन थिंकिंग एंड कीप ऑन आस्किंग. यू शुड आस्क और रीड और एक्सप्लोर, ढूंढो. तो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बंदर हमें चिढ़ा रहा है इस चित्र के द्वारा. तो इस चित्र के द्वारा हमें चिढ़ा रहा है. चिढ़ाने को कहते हैं टीजिंग, टीज करना. बंदर हमें टीज कर रहा है. देखो, संजना ने भी कहा कि मंकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है. अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा. मैं हमेशा हर सेशन में अपने जो भी कंटेंट होता है उसको बाहरी चीजों से कनेक्ट करता हूँ, और ये बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है. अभी हम तो यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ पढ़ते हुए, जैसे अभी मैंने कहा कि हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए. बंदर हमें अपने शरीर के किस अवयव द्वारा हमें चिढ़ा रहा है? By which part of the body the monkey is teasing us? Tell me. क्या दिखा रहा है बंदर हमें? क्या हमें कान दिखा रहा है वो,
Is he showing us his ear or is he showing his eye? Tell me, what is he showing? You can answer me in the chat. You can answer me through the message. Many students have answered. Come on fast. Okay, Nidhi, tongue, very nice. Other student also answered. अब आपको क्या हो सकता है? स्पेलिंग जब हम लोग लिखते हैं तो वो गलत हो सकती है. स्टूडेंट्स, अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो शुरुआती दौर में स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना है, आपको हिस्सा लेना है, सुनना है, सुनने की कोशिश, सुनने के बाद समझने की कोशिश करना है और बोलना है भले या लिखना है. अब बोलते समय उसका उच्चारण गलत हो सकता है, कोई बात नहीं. लिखते समय स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई बात नहीं. अगर आप उच्चारण के जरिए कि मुझे ये बोलना नहीं आ रहा है, या अगर आप लिखने के समय स्पेलिंग सोचेंगे, अरे मुझे टंग की स्पेलिंग तो नहीं आती, भी इतने बच्चों ने टंग लिख दिया, किसी की स्पेलिंग गलत भी है, बट दैट डजंट मैटर एट ऑल. कुछ बच्चे सोच रहे मैं टंग कैसे लिखूं, स्पेलिंग नहीं आती इसलिए मैं नहीं लिखता. और यही चीज है, आप सीखने में थोड़े पीछे रह जाते हो और आपको थोड़ा समय ज्यादा लगता है. सो बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट, जस्ट अटर, जस्ट come in front, just write. Okay, this is very important to all. So we will move forward with our next slide. Can you tell me the name of this animal? देखो, अभी मैंने बहुत जल्दी से ये सेंटेंस पढ़ दिया, ठीक है, बहुत कम सेकंड लगे. हो सकता है कि आप लोगों को पढ़ने में समय लग रहा हो. जैसे आप पढ़ सकते हैं, कैन यू टेल द नेम ऑफ दिस एनिमल. इतना टाइम आपको लग सकता है, बट देन टू नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि यही सीखने की हमारी पहली सीढ़ी है. ठीक है, अगर कुछ बच्चे कैन भी नहीं पढ़ सकते तो उन्हें क्या करना है, CAN, कैन. ठीक है, शुरुआत आपको करनी है और प्रयास आपको जारी रखना है. यू शुड कीप ऑन लर्निंग एंड पुटिंग द एफर्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. I can see Nidhi is saying this is a lion, this is a king. Yes, it is king of all the animals. It lives in a forest. It is very brave. See how many sentences I told you about the picture. So this happens when you learn something. आपको भी कोशिश करनी है. चैट में बहुत से बच्चे लिख रहे हैं, पिक्चर्स के बारे में लिख रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी बच्चों से भी, सब लोग अगर इसको करें तो ज्यादा अच्छा होगा. अदरवाइज आई एम ऑलरेडी गेटिंग रिस्पॉन्सेज, दिस इज वेरी गुड. Now we will move to the next slide. Okay students, can you tell me which animal is this? Very cute animal, बहुत ही सुंदर दिख रही है ये पिक्चर, बहुत ही अच्छा लग रहा है. बता सकते हैं आप लोग मुझे कि ये कौन सा एनिमल है? सोचिए सोचिए सोचिए. स्पेलिंग नहीं आती है, जैसे आपको स्पेलिंग आती है लिखिए. वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है. Very nice. I can see the chats. Again, I give you time. See, one student has told it is Gilary. Yes, Ashira. Avinash is saying squirrel. Correct answer. Gilary is also correct answer. ठीक है, इसमें चले, चाहे आपको स्क्वेरल की स्पेलिंग आती हो या नहीं आती हो, कोई बात नहीं. शुरुआती दौर में आप उसको ढूंढ सकते हैं, मैं आपको ढूंढने का तरीका भी बताऊंगा. एक बच्चा बोल रहा है गिलहरी, कोई बात नहीं, हिंदी में उसने कहा लेकिन उसने समझ गया, ये समझना जरूरी है. सो मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, इट इज अ स्क्विरल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी विच एनिमल, विच इंसेक्ट इट इज. हमने अभी कुछ एनिमल्स देखे, प्राणी देखे, अभी इंसेक्ट देख रहे हैं. आइडेंटिफाई विच इंसेक्ट इज दिस. इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े. आपको आंसर स्लाइड पर दिख रहा है. इट इज अ फ्लाई, FLY, फ्लाई. फ्लाई यानी कि मक्खी. आप देख रहे हैं मॉस्किटो जैसा भी दिख रहा है. कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं. आई कैन टेक दिस आंसर एज वेल, बट आई वुड लाइक टू ऐड योर, इट इज अ फ्लाई. हाउस फ्लाई जिसे हम कहते हैं, मक्खी जिसे हम कहते हैं. ठीक है, आज जो हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो एक लायन के बारे में है, एक स्क्विरल के बारे में है, एक मक्खी के बारे में है, और भी कुछ एनिमल्स इसमें है, वो भी हम देखने वाले हैं. गेस द नेम ऑफ दिस एनिमल. अब बच्चों यहाँ लिखा है गेस. गेस का मतलब क्या होता है? हमारे घर में बनाया जाने वाला, जिसे हम खाना बनाते वो वाला गैस नहीं, ये गैस है. ओके, गेस मतलब अंदाजा लगाओ, सोचो, बताओ. यस, करेक्ट आंसर, इट इज अ फिश. वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट, वेरी क्यूट, वेरी नाइस. दिस इज अ फिश.
My dear students, whenever you see something, you should have words about it. अब मैंने fish कहा तो मैं इससे संबंधित कौन से शब्द बोल सकता हूँ? I can say the fish lives in the water. Very quickly this must come. आपको तुरंत इंग्लिश में उससे संबंधित कुछ ना कुछ, देखो एक बच्चे ने कहा कलरफुल, वेरी नाइस। जितना ज्यादा आपके दिमाग में शब्द आते हैं उतना ज्यादा आप जल्दी सीखते हो, ज्यादा सीखते हो। So today onwards, whoever is attending this session now, or this session is recorded, so this can be utilized, this can be used ever and ever. आप लोग अपने friends को बताकर, अपने सिबलिंग्स को बताकर और दूसरे लोगों को बताकर इसका फायदा बाद में भी ले सकते हैं। YouTube पर ये सेशन रिकॉर्डेड होगा, सेव होगा, जैसे कि हम जाकर वहां पे सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो क्यों ना हम पढ़ाई का आनंद वहां से ले, सीखने का आनंद वहां से ले। तो ये सेशन आप बाद में भी देख सकते हो और वहां पर जिस बच्चे ने ये सेशन आज का मिस कर लिया है उसे आप बता सकते हो, और आप भी इसको बार बार देखकर जो है सीख सकते हो, क्योंकि हर एक चीज हम याद नहीं रख पाएंगे जो अभी सेशन में हो रही है। तो आप इसको दोबारा देख करके इसको और सीख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि अभी आपने क्या सीखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, the name is here, fish, and now see, very strange looking animal. Many of you have not seen it before. The name has also come here. What is this? This is seal. Can you say which animal is this? The question is there, answer is there, seal. ठीक है? अब ये जो एनिमल है ये जल्दी हम नहीं देखते हैं, ये समुद्र में रहता है, इट लिव्स इन अ डीप सी, और बहुत ही कम जगह पर पाया जाता है। तो बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते नहीं होंगे, बट वी आर गोइंग टू सी द पिक्चर्स, वी आर गोइंग टू सी दिस एनिमल एंड लर्न अबाउट दिस एनिमल थ्रू द पोएम। Animals are also called as creatures. What do you mean by creatures, students? Creatures मतलब कोई भी सजीव, सिर्फ प्राणी जगत को छोड़ के। अब सजीव कहा तो चाहे कोई वो प्राणी हो, चाहे जैसे हमने देखा शेर, हमने देखा गिलहरी, हमने देखा सील, या फिर कोई भी इंसेक्ट हो, कीड़े मकोड़े हो, मक्खी हमने देखा, मॉस्किटो आपने कहा, इन सबको हम कहते हैं क्रीचर्स। ठीक है, वी ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज क्रीचर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ क्रीचर्स में, सजीवों में प्राणियों का समावेश होता है, वनस्पतियों का समावेश नहीं होता, पेड़ पौधों का समावेश नहीं होता। बाकी जितने भी सजीव है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो या और कुछ हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रीचर्स करते हैं। सो लेट्स लर्न अ पोएम अबाउट क्रीचर्स। We will learn a poem about lion, squirrel. See students, you can take the spelling from this. जिस भी बच्चे को स्पेलिंग नहीं आ रही थी, ढूंढो उसे। और जैसे कि आप जानते हैं, ये आप बहुत से बच्चे मोबाइल को यूज करना जानते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि मैं कैसे ढूंढूंगा, या इस पीपीटी की, इस सेशन की कोई बात आपको अच्छी लग रही है जो आपको मोबाइल पे दिख रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके तुरंत उसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं बात के लिए। ठीक है, अभी तुरंत लिखना आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप फिलहाल सिर्फ सुनते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। मोबाइल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, बहुत ही आसान होता है, वो ले सकते हैं। तो आपको अगली बार स्पेलिंग याद करने के लिए या क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आसानी होगी। Two more things we have here, fly and seal. Okay, ये हमने अभी देखा। Next is the poem's title is How Creatures Move. Students, this is a poem in our English textbook. It's on page number 47. आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हैं, सामने होगा तो सुनने में, देखने में इजी होगा और कनेक्ट करना बहुत ही आसान होगा। Other than English medium, this poem will be there for all the mediums. इंग्लिश मीडियम में बाल भारती की बुक होती है, और हमारे हिंदी मीडियम या मराठी हो, गुजराती हो, इन सब ही मीडियम को ये पोएम मिलेगी। यही बुक होती है अवर बुक इंग्लिश 5, मतलब 5वीं कक्षा के लिए जो बुक है। तो आपको हर मीडियम के बच्चे को, मराठी हो, वर्नाक्युलर मीडियम जिसे हम कहते हैं, तो मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, आपको ये इंग्लिश की पोएम मिल जाएगी पेज नंबर 47 पे। This is the page you have on our page number 47. आपको किताब में ऐसा ही दिख रहा होगा। Okay, now I will read out the first stanza for you. The lion walks on padded paws, the squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall. See students, so fast I read the poem. I'll go a little slower now. The lion walks on padded paws, the squirrel leaps
from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall. अब थोड़ा मैं और धीरे बोलूंगा और कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ अपने अपने घर में बैठे हुए जहां पे आप है वहां पे इसको बोलने की कोशिश करें, क्योंकि लैंग्वेज हम सीख रहे हैं वो सिर्फ सुन के नहीं आती है, उसके साथ बोलना बहुत जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बोलना बहुत जरूरी है, भले आप उसका सही उच्चारण कर पाओ या नहीं। तो आपको मेरे साथ बोलना है, द लायन वॉक्स on padded paws, the squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall. Very good. I believe many of you have read these stanza with me. जिन्होंने नहीं किया है वो अपना जो झिझक है, हेजिटेशन है, उसको दूर करे। बोलना बहुत जरूरी है। आप अपने आप पे खुद महसूस करेंगे कि आप बार बार बोलने से उसको सीख रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर पेरेंट्स विल आल्सो फील लाइक यस माय चाइल्ड कैन learn English and he can speak or she can speak better now. With practice you can do. Now we will move to the next slide. See students, the lion walks on padded paws. आपको एक लायन जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है पिक्चर में। लायन यानी शेर, वॉक्स यानी चलता है, पैडेड यानी कि गद्दीदार, पॉज यानी पंजे। बच्चों हमारे पास हाथ और पैर हैं, हाथ में और पैर में हमारे पास उंगलियां होती है, उंगलियों को हम फिंगर्स कहते हैं, और हाथ की उंगली को फिंगर्स और पैर की उंगली को टोज कहते हैं, TOES टोज। लेकिन जानवरों के पास उंगलियां नहीं होती इस तरीके से, उनके जो हाथ और पैर है उसमें क्या होते हैं, पॉज होते हैं यानी पंजे होते हैं। ठीक है, तो जो लायन आपको दिखाई दे रहा है चलते हुए अपने पंजों पर चल रहा है, उसके पंजे गद्दीदार होते हैं ताकि वो जब शिकार करे तो उसकी आहट उसके शिकार तक न पहुंचे और वो उस पर आक्रमण करके उसको खा ले। Okay, so you can see this picture and you can read the line out here. The lion walks on padded paws. Next slide is, see, very beautiful picture it is. What the squirrel is doing? आप बता सकते हैं क्या कर रही है स्क्विरल? अभी बहुत से बच्चे तुरंत बता दिए होंगे, सर कूद रही है, हिंदी में बोलेंगे सर जंप मार रही है। कभी कभी हमें इंग्लिश के शब्द ज्यादा इजी पड़ते हैं, ठीक है, सब लोगों ने सर जंप कर रही है। तो स्टूडेंट्स, द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। तो लीप्स का मतलब ये होता है कूदना या जंप मारना। फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब यहाँ पे लिखा गया, लिम्ब का यहाँ पर मतलब होगा पेड़ की टहनी, शाखा, ब्रांच। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में एक गिलहरी एक टहनी से दूसरी टहनी पे जंप करती रहती है, आपने देखा होगा, तो वही यहाँ पे लिखा है द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। नेक्स्ट स्लाइड है, while flies can crawl straight up a wall। अब आपको दिख रहा होगा कि एक मक्खी जो है वो उड़ रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये दीवार पर चढ़ी क्योंकि यहाँ पर लिखा है while flies can crawl। क्रॉल का एक्चुअल मतलब होता है रेंगना। तो मक्खी जो है वो तो उड़ सकती है, लेकिन जब वो चलती है तो दीवार पर भी अपने पैरों के सहारे से चल सकती है। स्ट्रेट अप अ वॉल, स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा वो चलती है, वॉल का मतलब दीवार होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो चित्र में आपको मक्खी भिनभिनाती हुई दिख रही है, इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं द फ्लाई इज बजिंग। ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, यू शुड कीप ऑन थिंकिंग। अभी आप मुझे बताओ कि मक्खी के बारे में आप कौन सा शब्द बता पाओगे? जैसे लायन के बारे में किंग कहा था आपने, तो फ्लाई के बारे में आप क्या बोल सकते हो? इससे रिलेटेड वर्ड तुरंत आना चाहिए आपके दिमाग में। कौन बता सकता है मुझे? जल्दी से चैट में लिख के बताए। वेरी गुड, आई गॉट अ रिस्पॉन्स, जंप। ठीक है, जंप करती है। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसका आकार कैसा है बच्चों? मक्खी का आकार कैसा दिखाई दे रहा है आपको? किसी ने मुझे कहा था बिग एलिफेंट के टाइम पे, तो मक्खी कैसी दिख रही है आपको? क्या ये बड़ी है? नो। क्या ये छोटी है? यस। तो हम छोटी को क्या कहेंगे? वेरी गुड निधि, इट इज स्मॉल, है ना? तो जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपने फ्लाई सीखा, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि ये मक्खी क्या है, बहुत सी छोटी है, स्मॉल है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, टाइनी भी हम इसे कह सकते हैं, TINY, टाइनी। ओके, इट्स अ टाइनी क्रीचर, ओके, व्हिच वी गेट इन आवर हाउस। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, एक और मक्खी है, ये जो है दीवार पर घूम रही है, हम ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अभी हमने कहा सील, ठीक है,
तो ये हमारा सील प्राणी है। एंड द लाइन इज एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। डाइव का मतलब होता है पानी में जंप करना। अगर हम सिर के बल अगर पानी में जंप करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइव। और स्विम तो आप जानते हैं, आपने देखा है, स्विम का मतलब है तैरना। बहुत से बच्चे तैरना भी जानते होंगे। तो ये जो प्राणी है समुद्र में रहता है, ये पानी में जंप लगाता है और वहां पर तैरता है। ये बच्चों मूव मतलब उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो लायन जो है वो चलता है, स्क्विरल जो है वो जंप करती है, मक्खी जो है फ्लाई जो है वो क्रॉल करती है यानी रेंगती है, और सील जो है ये क्या करता है, डाइव करता है, पानी में गोता लगाता है, स्विम करता है। तो ये अलग अलग मूवमेंट्स हमने देखा। ओके, अगेन वी शैल सी द पैराग्राफ। The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall. Again, this photo we can see. This is the page of your English textbook. You can see it is on page number 47. आपको शब्दों को भी ध्यान में देखना है, ध्यान से देखते रहना है. Now, other stanzas. The worm he wiggles all around. The monkey swings by his tail. And birds may hop upon the ground. बच्चों, अब वॉर्म क्या होता है? वॉर्म मतलब होता है कृमि या कीड़ा। आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका मतलब, इसका अर्थ दिया हुआ है। एक फनी सा कार्टून वाला कीड़ा मैंने दिखाया है, और असली भी कीड़े जो है जिसको हम लोग बहुत से हिंदी में नाम होते हैं अलग अलग, जनरली इंग्लिश में उसे सिर्फ वॉर्म कहा जाता है। अर्थ वॉर्म होता है, टेप वॉर्म होता है। तो कुछ वॉर्म्स यानी कुछ कीड़े की फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब लिखा है यहाँ पे वॉर्म्स विगल। कीड़े जो क्या करते हैं, वो यहाँ वहां हिलते डुलते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में क्या कर रहा है कीड़ा, यहाँ वहां वो हिल डुल रहा है, उसको विगल कहते हैं। ठीक है, तो वॉर्म्स विगल। नाउ वेरी क्यूट क्रीचर अगेन, व्हाट कैन यू सी हियर? मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। मंकी क्या कर रहा है, अपने पूंछ के द्वारा झूल रहा है। पेड़ की टहनी से उसने अपनी पूंछ बांध रखी है और क्या कर रहा है, झूल रहा है। ठीक है, आप जानते हैं बच्चे, मंकी जो होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो जाता है, जंप करता है, तो अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करता है और अपनी पूंछ को भी वो प्रयोग में लाता है, उससे वो झूलता भी है। आप अगली स्लाइड में देख सकते हो। और रियल मंकी इज मूविंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर एंड ही हैज हेल्ड द ब्रांच विथ इट्स टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। उसने अपनी पूंछ से भी पकड़ के रखा है, अपने हाथ से भी टहनियों को पकड़ रहा है, वो भाग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अभी हमने देखा था birds may hop upon the ground and spread, and now we can see the birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. Birds hop, hop का मतलब क्या होता है, कूदना। आप देख सकते हैं पिक्चर में जो पक्षी है, चिड़िया है, वो फुदक फुदक कर चढ़ रही है, इसको हम कहते हैं हॉप यानी फुदक कर चलना। और बर्ड सेल, सेल्स का मतलब, एक्चुअल सेल का मतलब होता है पानी पर सफर करना। जैसे जहाज चलती है उसको सेल कहते हैं। ठीक है, शिप हो, बड़ा जहाज हो। लेकिन यहाँ पर जो पक्षी है, यहाँ पे मैंने एक ईगल का फोटो लिया है। ये पक्षी जो उड़ रहा है, ये थोड़ा पंख फड़फड़ाता है और बिना कोई एक्शन किए फिर वो बहुत समय तक एक ग्लाइड करता है, तो उसको हम लोग सेल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल का मतलब हो रहा है कि पक्षी जो है वो उड़ रहा है आसमान में। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन। लेकिन बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स यानी लड़के लड़कियां, इनको बहुत ज्यादा मजा होता है। हमने देखा कि जो लायन है वो चलता है, जो स्क्विरल है वो कूदती है, जो मक्खी है वो रेंगती है, जो सील है वो तैरता है। लेकिन बच्चे जो हैं, बॉयज एंड गर्ल्स जो है, आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जो है, उनको और बहुत मजा है। They can have, what can they do? Boys and girls have much more fun. वो बहुत मजा कर सकते हैं। They leap and dance and walk and run. वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं boys and girls are leaping, जंप मार रहे हैं। Very nice. ओके, एक लड़का देखो बहुत सा नॉटी है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ज्यादा जंप मार रहे हैं, दूसरे बच्चे कम जंप मार रहे हैं यानी लीप कर रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स डांस, और क्या करते हैं बच्चे, डांस करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे बहुत मजा कर रहे हैं। दे आर हैविंग फन, दे आर डांसिंग। ठीक है, स्पेलिंग्स भी आप देख सकते हैं, और मैंने जैसे कहा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स वॉक, और क्या कर सकते हैं, बच्चे चल भी सकते हैं। सो यू कैन सी द चिल्ड्रन आर वॉकिंग। ओके, वॉक यानी चलना। अब वॉक में क्या इंपॉर्टेंट है, एल लिखा हुआ है, लेकिन इसको वॉल्क नहीं कहा जाता।
क्योंकि एल साइलेंट होता है, तो इंग्लिश में से बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें कुछ अक्षर साइलेंट होते हैं, वो लिखे जाते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता। तो WALK को वॉक कहेंगे, वॉक यानी चलना। बॉयज एंड गर्ल्स रन, और बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है वो दौड़ते भी है। आपको दिखाई दे रहा है बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज अवर पोएम, हियर द पोएम एंड्स। ओके, नाउ आई हैव सम वर्ड मीनिंग्स फॉर यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने अभी पोएम में जो शब्द बताए हैं वही यहाँ पर है। वॉक्स यानी चलना, पैडेड यानी गद्दीदार, लिम यानी टहनी, क्रॉल यानी रेंगना, स्ट्रेट यानी सीधा, वॉल यानी दीवार, डाइव मतलब पानी में कूदना, स्विम यानी तैरना। तो इस तरीके से आप शब्दों को सीख सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ सुनकर ही इंग्लिश नहीं आती, आपको बोलना जरूरी है। और बोलते समय आप बोलेंगे मुझे हिंदी में तो उसका अर्थ पता है लेकिन इंग्लिश में नहीं आता, ठीक है, तो आपको इंग्लिश के शब्दों को याद करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों को आपको मैच करना पड़ेगा। या आपकी और कोई मदर टंग है, जैसे कोई मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, तो आपको इंग्लिश के शब्द और उसको अपनी मदर टंग में क्या कहते हैं उन दोनों शब्दों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब उसका जो है अर्थ है वो आपको क्लियर होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा इंग्लिश बोलने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, और कुछ शब्दार्थ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ये लिखना भी है। बाद में आपको YouTube पे बाद में भी सेशन मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से देख के लिख सकते हैं। होमवर्क के तौर पर आपको ये शब्दार्थ लिखने भी है, क्योंकि सिर्फ आपने एक बार सुना पढ़ा तो आपको नहीं आ जाएगा, उसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है और इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग भी करना है, ठीक है। चाहे आप अपने भाई के साथ कहो, बहन के साथ कहो, दोस्तों के साथ कहो। जैसे यहाँ पे लिखा है अराउंड, ठीक है, तो हमने पढ़ा था द वॉर्म्स विगल अराउंड, लेकिन इस अराउंड को मैं अपने शब्दों में प्रयोग करता हूं। मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू मूव अराउंड, मैं आई एम गोइंग टू रन अराउंड द गार्डन। तो ऐसा अलग अलग वाक्यों में आपको अपने इन शब्दों का प्रयोग भी करना है। स्विंग्स यानी झूलना, ठीक है, हमने देखा बंदर जो है वो झूल रहा था अपनी पूंछ के द्वारा, लेकिन मैं स्विंग्स का उपयोग कैसे करूंगा अपने वाक्य में, मैं कहूंगा आई हैव सीन मेनी स्विंग्स इन द गार्डन, मैंने गार्डन में बहुत सारे स्विंग्स देखे। तो स्विंग्स का एक अर्थ होता है झूलना और दूसरा अर्थ होता है झूला। या आप लिख सकते हैं द गर्ल इज स्विंगिंग देयर, वहां पे एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। आप लिख सकते हैं द चिल्ड्रन स्विंग इन द गार्डन एवरी इवनिंग, बच्चे जो है गार्डन में हर दिन हर शाम को झूला झूलते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट, अदर वर्ड्स आर विंग्स यानी कि पंख, लीप यानी कूदना, डांस यानी नाचना, रन यानी दौड़ना। बच्चों हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीखते हैं, जैसे विंग्स क्या है, हमारे शरीर का अवयव, हमारे मतलब प्राणियों के, पक्षियों के, हमारे पास विंग्स नहीं होते, ठीक है। लीप एक वर्ब है, कूदना, डांस भी एक वर्ब है, क्रिया है, नाचना, रन एक क्रिया है। तो आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान होना चाहिए कि एक संज्ञा है या एक क्रिया है, तो आपको सीखने में आसानी होगी। Now let's learn number now. After the poem we have some exercise also. यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है वन मैनी यानी एक वचन और बहुवचन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं। SINGULAR सिंगुलर, PLURAL प्लूरल, जिसे हम आसान शब्दों में वन मैनी कहते हैं। ये हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 पर ये एक्सरसाइज दी हुई है। लायन एक वचन है, अगर हम कहते हैं कि दो लायन है या एक से ज्यादा है, दो हो, तीन हो या कितने हो, तब हम उसे कहेंगे लायंस। देयर आर मेनी लायंस इन द फॉरेस्ट। उसी तरीके से स्क्वीरल यानी एक गिलहरी और स्क्वीरल्स यानी बहुत सी गिलहरियां। मंकी यानी एक मंकी, एक बंदर, मंकीज यानी बहुत से बंदर। बर्ड एक पक्षी, बर्ड्स बहुत सारे पक्षी। अब आप देख रहे हैं बच्चों, जनरली अब सिंगुलर टू प्लूरल करने के रूल्स होते हैं, वो आप हमारे ग्रामर के सेशन में डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ शब्दों के आगे एस लगाने से उसका बहुवचन का रूप बनता है, वन से मैनी बना सकते हैं। इससे लायन, स्क्विरल, मंकी, बर्ड आपने देखा। अब आप खुद सोचिए, आपके आस पड़ोस की चीजों को लेके देखिए। आप ऊपर देखेंगे फैन दिखाई देगा, देखो ऊपर देखना है, आप सोचेंगे क्यों देखूं, तो आपको जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश भी नहीं आएगी। अब आप सोचो एक फैन मेरे घर में है, किसी के घर में दो भी होगा तो क्या बोलेंगे,
फैंस बोलेंगे। देखो कुछ बच्चों ने बोला भी, तो यही चीज उन्हें आगे लेके जाएगी इंग्लिश सीखने के लिए। और कुछ बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, सोचे सर को थोड़ी पता चल रहा है बोलने से। लेकिन बिलीव मी स्टूडेंट, जितना आप खुद प्रयास करते हैं उतना ही ज्यादा आप इंग्लिश सीखते हैं। The more effort you put for learning English, the more you learn English, and you should keep on learning. तभी आपको इंग्लिश आएगी। आप देख सकते हैं दीवार है, हर घर में कम से कम 4 दीवार होती है। तो एक दीवार का मतलब वॉल होता है, WALL वॉल। अब मैंने कहा 4 दीवारें, तो मैं कहूंगा वॉल्स, WALLS। ठीक है। लास्ट का शब्द यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं FLY। तो FLY मतलब एक मक्खी, लेकिन इंग्लिश के ऐसे कुछ शब्द हैं जहां पर हम लोग Y जब आता है तो वहां Y हटा के IES लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा FLIES, फ्लाइज यानी मक्खियां। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, जैसे मंकी, मंकीज में आप देख रहे हैं। फ्लाई के बाद एक और शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्टोरी, कहानी हम सुनते हैं, STORY, स्टोरी। तो इसको जब हम लोग बहुवचन करते हैं कहानियां, तो वहां पर भी आई हम लोग Y हटा के IES लगा देंगे, STORIES, स्टोरीज। Okay students, now next slide I'll show. This is the homework for you. आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं और YouTube पर बाद में भी देख के आप इसका कंप्लीट कर सकते हैं। तो I would like to request you all कि आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होमवर्क में करके आपको अपने टीचर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। बिकॉज द एफर्ट यू डू, जितना आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी सीखेंगे। इसको आप ढूंढिए, नहीं आता है तो पूछिए। ठीक है, सिर्फ सुन के जाने देंगे तो नहीं आएगा। तो होमवर्क में आपको कंपलसरी करना भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो 1 है उसका मैनी फॉर्म आपको लिखना है, और मैनी जो लिखा है, एलिफेंट्स लिखा है, उसको आपको फर्स्ट उसका 1 फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। ओके, द पोएम हियर एंड्स। व्हाट इज रिटन हियर, आप लोग पढ़ सकते हैं। होप यू एंजॉयड द पोएम। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने इस पोएम को क्या किया, एंजॉय किया। किया आपने एंजॉय? आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं मैसेज के थ्रू। डिड यू लाइक द पोएम? डिड यू लाइक द सेशन? Okay, I got many emojis, many answers I am getting here. Yes sir, thank you. So I also thank you for attending. Now I will stop this PPT and I'll show you something. This is very important. As I told you in the beginning, students, I told you कि आपको कोई चीज ढूंढनी है। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया। आप अपने टेक्स्ट बुक से जो भी वर्ड आपको नहीं आता है, आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, बहुत से बच्चों के पास लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, नेट कनेक्शन उसमें होगा, और ऐसा होता है कि कुछ शब्दों के अर्थ तो हमें पता होते हैं, लेकिन हम सीखना चाहते हैं और हमें उस शब्द का अर्थ पता नहीं होता। तो बच्चों, आपको खुद से ढूंढना है। जब पहले इंटरनेट नहीं होता था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तब हमारे शिक्षक हमसे कहा करते थे, वहां लाइब्रेरी है, जाओ वहां पे, जाओ लाइब्रेरी में बहुत सी पुस्तकें हैं, उसमें ढूंढो। बहुत से शिक्षकों ने कहा है और मैं जाता भी था। बहुत से शब्दों को या चीजों को मैंने ढूंढा भी है किताबों के जरिए। लेकिन अब जो है 21वीं सदी का जमाना है, बहुत आसान हो गया है, गूगल की देन है हमारे पास, साइंस ने हमें इंटरनेट दिया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, गूगल पे वो शब्द टाइप करना है। इट टेक्स वेरी फ्यू सेकेंड्स और आपको उसका अर्थ पता चल जाता है। तो जिस बच्चे को सीखने की चाह है, बहुत उत्सुक है, तो आपको इस तरीके से ढूंढना है। जैसे एक शब्द यहाँ पे था वॉर्म, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉर्म। तो W आपने टाइप किया ORM, वॉर्म लिखा। सिर्फ वॉर्म करोगे तो भी आ जाएगा। अगर आप लिखेंगे वॉर्म मीनिंग, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वॉर्म मीनिंग आ गया है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये स्क्रीन पे आ गया। वॉर्म बोलते हैं, वर्म बोलते हैं। यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का साइन दिखाई दे रहा है, ये आपको इसका उच्चारण भी बता देगा। प्ले करता हूँ, ये प्ले होके आपको सुनाई भी देगा और उसका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मीनिंग आपको दिखाई देगा। लिखा है नाउन, स्मॉल एनिमल विद लॉन्ग थिन बॉडी एंड नो आईज, बोन्स और लेग्स। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से जितना ज्यादा आप सीखोगे, एक साथ में सीखोगे, तो आपको हो सकता है डाउट हो, डिफिकल्टी हो। तो आपको जितना उसमें से समझ में आता है उतना आपको लेना है। मैंने कहा था वर्म का मतलब कीड़ा होता है, कृमि होता है, वही मीनिंग आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी शब्द को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड मैं आपको डाल के यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने एक और शब्द यहाँ पे लिखा, SEALC,
सर्च पे मैंने क्लिक किया तो तुरंत हमें इसका मीनिंग आ जाता है सील। ठीक है, सील क्या है? समुद्र में रहने वाला एक मछली खाने वाला जीव, समुद्री पशु। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो कोई भी शब्द होगा उसका उच्चारण हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पोएम का सेशन जो होता है वो खत्म होता है।